Moving on to the third part of today's webinar, we will explore the laws compendium on prevention of money laundering Act 2002. Let's examine some in landmark cases that have shaped the interpretation and application of PMLA. Over to you, Advocate Somani, to guide us through the key cases and their implication. Over Thank to you. you. Thank you, Shruti, uh, for not to introduce me in detail here, because you are already introducing me in first part. So we can save the time, or we can give that time to enhance the knowledge on case laws of PMLA. Now, in third part, case laws, compendium on PMLA, Prevention of Money Laundering Act. इसमें हम खाली केस लॉज अभी देखेंगे, विथ देयर रेशियो डिसेंडी वगैरह सब देखेंगे अभी. So this is very useful part for lawyers. Lawyers के लिए बहुत यूजफुल है, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं बेल्स के लिए या ईडी के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे एक जगह पे आपको ये मिल रहा है. कुछ दिन के बाद ये ब्लॉक, वी विल पब्लिश दिस ब्लॉक ऑन आवर वेबसाइट्स. यू विल गेट द लिंक इन ऑफिशियल एनपी एनएलसी ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 ग्रुप और लाइव मेंबर के ग्रुप में आपको इसके लिंक जरूर मिलेंगे. First case, Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India, citation 2022, SCC online, SC 929. Ratio descendi, upheld constitutional validity of key provisions of PMLA. Money laundering is a stand-alone and continuing offense. It is very great interpretation by our apex court. Then Enforcement Directorate, ED, power under section 5, 17, 19 and 50 are valid. EEIR is not equivalent to FIR. Supply not mandatory. Then reverse burden of proof under section 24 upheld. Landmark judgment strengthen India's anti-block money framework. 2. Nilesh Tarachand Shah versus Union of India. Citation 2018, 11 SCC 1. Ratio struck down section 45 twin bell condition as unconstitutional, violative of article 14 and 21. Latter overridden by legislative amendment and upheld in Vijay Madan Lal. Let me explain. ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है 2018 का, ये अभी ओवररूल हुआ है. ये विजय मदन लाल केस जो अभी 2025 का हमने ऊपर देखा है, ओके, 2022 का इसमें देखा है, ये से ओवररूल किया है, क्योंकि आफ्टर दिस केस लॉ, नीलेश ताराचंद शाह के केस लॉ के बाद में लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट हुआ है, एंड देन विजय मदन लाल का वर्डिक हमारे कोर्ट का आया है. देन थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. साइटेशन 2020 13 SCC 791. Ratio, economic offenses are grave and serious. Bail cannot be granted casually in PMLA cases. Consideration of gravity and impact on economy. Then 4, Rohit Tandon versus Directorate of Enforcement. Citation 2018, 11 SCC 46. Ratio, proceeds of crime includes tainted money even after conversion. Offense continue so long as money is projected as legitimate. Then fifth case law, Gautam Kundu versus Directorate of Enforcement. लॉन्ग फॉर्म इसका डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट पे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ईडी है, दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. साइटेशन 2015 16 SCC 1.
Ratio, strict bail conditions justified due to seriousness of offense. PMLA offenses affect entire financial system. Case number 6, Union of India versus Hassan Ali Khan. Citation 2011 10 SCC 235. Ratio, black money offenses have international ramifications. Court must adopt strict approach. 7, Radha Mohan Lakhotia versus Directorate of Enforcement. Citation 208 2008 5 SCC 758. Ratio, money laundering offense must exist independently of conviction in predicate offense. Very good judgment. 8, State of Bihar versus Amit Kumar. Citation 2017 13 SCC 751. Ratio, economic offenses required different approach from ordinary crimes. Bail should be cautiously granted. So friend, above 8 citation I have explained, which is of Supreme Court, apex court of the land. Now, in second part, I am explaining some High Court judgments, which creates the good jurisprudence in money laundering matters. So, 9 number case, J. Shekhar versus Enforcement Director of Enforcement. 2018 SCC online, Delhi 6523. Ratio, attachment must be based on credible material. Safeguards against arbitrary exercise of power. 10, Maha Nivesh Oil and Food Private Limited versus Directorate of Enforcement. Citation 2016 SCC online Dell 475. Ratio, proceed of crime must have direct nexus with schedule offenses. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक केस लॉ जरूर पढ़ो कि जो प्रोसीड क्राइम में मिला है, दैट प्रोसीड्स हैव डायरेक्ट नेक्सस विथ शेड्यूल ऑफेंस. शेड्यूल ऑफेंस से अगर डायरेक्ट नेक्सस है तो ही फिर वो प्रोसीड जो है, दैट प्रोसीड कैन बी कंसिडर ऑफ द अंडर पीएमएलए ऑफेंस. अगर नहीं है तो आपका एक्यूज छूट जाएगा उसमें. सो इन विच वे यू आर प्लीडिंग दिस केस? प्रोसिक्यूशन के थ्रू आप एक केस प्लीड कर रहे हैं या एक्यूज के थ्रू कर रहे हैं? तो दोनों साइड से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब्दुल्ला अली बलशर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट. इसमें रेशो है, property acquired prior to offense cannot be attached unless linked to crime. Very good. Then 12, Aslam Merchant versus competent authority. Ratio, burden on authorities to establish link between property and crime. 13, Upendra Rai versus Directorate of Enforcement. Ratio, bail depends on cooperation with investigation and evidence on a record. 14, Vikas WSP Limited versus Directorate of Enforcement. Ratio, attachment cannot be mechanical, requires application of mind. Very good case law. 15, B. Rama Raju versus Union of India. Citation 2011 SCC ऑनलाइन एपी, ये आंध्र प्रदेश का है, 152. रेशो, वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए अपहेल्ड, लॉ एम एट कंबैटिंग सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस. 16, सीमा गर वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. रेशो, बोनाफाइड परचेसर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड. इनोसेंट थर्ड पार्टीज कैनॉट बी पेनलाइज्ड. 17, Kavitha G. Pillai versus ED. Ratio,
procedural fairness is essential in ED actions. Procedural fairness अगर नहीं है ED के एक्शन में, that can be a positive point for accused and negative point for prosecution. इसलिए प्रोसीजरल फेयरनेस ईडी जितना रखेगी उतना अच्छा है. इसलिए जो लॉयर ईडी के एडवाइजरी पैनल के ऊपर है, वो लॉयर को मैं बताना चाहता हूं, ईमानदारी से आपका काम कीजिए. ईडी को अगर प्रॉपर गाइड करते हैं तो ईडी ट्रायल में फेयरनेस रखेगी, इन्वेस्टिगेशन में फेयरनेस रखेगी, और सही में जो अक्यूज हैं, सही में जो गुनहगार हैं, उनको सजा भी होगी. लेकिन अगर गुनहगार नहीं है, थोड़ा भी फेयरनेस दिखता है, फेयरनेस दिखता नहीं है, तो भी वो एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस के कारण वो अक्यूज छूट जाएगा. दैट इज द स्किल ऑफ एडवोकेट. इसलिए हम बोलते हैं ना, इवन दो वी आर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, तो भी एफआईआर बार बार पढ़ो. खाली हाईकोर्ट का ऑर्डर मत पढ़ो, खाली हाईकोर्ट के प्लीडिंग मत पढ़ो. जो ट्रायल कोर्ट में आने के पहले जो एफआईआर हुआ है, बाद में चार्जशीट हुआ है, बाद में इसके क्या बोलते हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, ये सब बार बार पढ़ना चाहिए, तब जाके क्लू मिलते हैं. इतनी मेहनत लेते कौन है? बस वो हाई कोर्ट में आया मैटर, बस वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फाइल लेगा, उसको कॉपी पेस्ट करेगा, चले आगे. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उसको उल्टा पाल्टा करके करेगा. लेकिन आप जब तक डिप तक नहीं जाते हैं ना, तब तक आपको क्लू नहीं मिलेगा. याद रखना, आपके लिए वो 500,000 में का एक केस है, लेकिन वो क्लाइंट के लिए उसके जीवन मरण का सवाल है दोस्तों. इसलिए आपके पास टीम चाहिए. अकेला आदमी नहीं कर सकता दोस्तों. एक एक आदमी इतना नहीं कर सकता, इसलिए टीम चाहिए. जैसे हमारे जेएसएस में टीम है, अलग अलग रिसर्च टीम है, स्क्रूटिनी टीम है, सब टीम अलग अलग है. सब टीम को मेरा डायरेक्शन जाता है, इस डायरेक्शन को इसको इन्वेस्टिगेट करना है. तो वो टीम वो डिप में जाके वो चीजें पढ़ती है, उसके पॉइंट निकालती है, फिर अगले टीम को देती है, अगली टीम उसके अगले टीम को देती है, और ये सब कुछ 5 दिनों में होता है. 5 दिनों में ड्राफ्ट तैयार होता है. एक कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर. हर स्टेज पे हमारा ख्याल रहता है, क्योंकि क्लाइंट हमारे लिए भगवान है. वो गुनहगार है नहीं है, एक कोर्ट डिसाइड करेगा, हमको नहीं डिसाइड करने वाले हैं. हमारे पास सामने जो रिकॉर्ड आता है, वो रिकॉर्ड ईमानदारी से कोर्ट के सामने रखना. अगर फेयरनेस नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो सामने रखना, ये हमारा ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी, ये हमको करना. फिर कोर्ट जो डिसीजन देगा वो देगा. लेकिन हम हमारी ड्यूटी ईमानदारी से करने के लिए सब डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करने होते हैं. इसलिए कुछ कुछ केसेस है ना, नहीं छूटते हैं. अगली अगली सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन में जाने के बाद भी छूटते नहीं. लेकिन वो वकील, वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो क्लाइंट हमको बोलता है, साहब आप लोगों ने मेहनत तो बहुत अच्छा लिया है, मेरा बैड लक था कि मेरे फेवर में केस नहीं आए, लेकिन आपने अभी तक बहुत हर स्टेट पे बहुत अच्छा क्या लिया है, ये मेहनत लिया है. इतना अच्छा रिमार्क हमको केस हारने के बाद भी कभी कभी देते हैं लोग. यही तो ग्रेटनेस है हमारे फील्ड में. नहीं तो केस हारने के बाद वकील लोग फोन ही नहीं उठाते क्लाइंट का, बातें नहीं करते उससे. ड्यू टू गिल्ट फील होगा, कुछ होगा, और ये फेस हमको करना पड़ता है अपीलेट कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में केस काफी फेस करना पड़ता है. हर केस नहीं जीत सकते हैं, हर केस नीचे से फॉल्टी नहीं रहता है. कुछ कुछ केसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं चेंज कर सकता उसको. लेकिन मेहनत अगर दिल से लेते हैं ना, तो चेंज हो भी सकता है. ये मैं बता रहा हूं आपको. इसलिए एफआईआर है, चार्जशीट है, और विटनेसेस के स्टेटमेंट है, और स्पेसिफिकली क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी जो रहती है ना, ये अगर हम डिप में पढ़ती है, उसको हाईलाइट हमारा टीम के जो मेंबर है, जूनियर काय के लिए है, इंटरेस्ट काय के लिए आपके पास. सब कुछ जेब में पैसा थोड़ी डालना है ना, बांटो ना लोगों में थोड़ा सा. टीम वर्क में काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन टीम वर्क कंट्रोल करना भी एक आर्ट होता है. आपको मैंने कितना एक्सपेंशन बोला है आपको पहले पार्ट के, सेकंड पार्ट के एंड में, हमारे लॉ फर्म का एपी का वो एक्सपीरियंस. कभी कभी जाएंगे फिजिकली पर्सनल मीटिंग के लिए, लेकिन तो भी हम पैनल के लॉयर के थ्रू करवाएंगे प्रॉपर ये सब चीजें, क्योंकि आई नो
कि किसी क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट केस लॉस देखते हैं। कविता जी पिलाई वर्सेस ईडी, प्रोसीजरल फेयरनेस इज एसेंशियल इन ईडी एक्शंस। 18 मोइन अख्तर कुरैशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेशो ECIR not required to be disclosed at initial stage। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, टू कीप द सीक्रेसी। विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, रेशो अरेस्ट मस्ट कंप्लाई विथ स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स। और 20 गगनदीप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेशो बेल पॉसिबल वेयर एविडेंस इज वीक। Then third part of this part, key legal principle emerging from case laws. 1. Nature of offense. Money laundering is continuous offense, stand-alone offense. Strict bail regime, twin condition under section 45. Bail is exception, not rule. बाकी केस में bail is rule and arrest is exception. But in PMLA, bail is exception, not rule. ये थोड़ा सा फर्क ख्याल में रखिए, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए ईडी के मैटर, पीएमएलए के मैटर, फेमा के मैटर सुप्रीम कोर्ट में हम जब फेस करते हैं तो फी बहुत अच्छी चार्ज करनी पड़ती है। बहुत एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं चार्ज करते हैं, लेकिन रीजनेबल करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो टीम काम करती है बहुत मेहनत करती है और बहुत मेहनत से काम होता है। स्ट्रिक्ट बिल रिज्यूम हुआ, देन वाइड पावर ऑफ ईडी, search, seizure, arrest upheld, subject to judicial scrutiny. Then 4, proceed of crime includes direct gains, indirect gains, converted assets. And 5th, balance between rights and enforcement. Court ensured due process, protection of innocent parties. And conclusion of this third part, the jurisprudence under PMLA reflects a strong judicial commitment to combat black money while maintaining constitutional safeguards. Supreme Court and High Court have strengthened enforcement powers, clarified legal standards, ensured procedural fairness, result a robust legal framework to tackle illicit wealth in India. माफ करना दोस्तों, ऐसे ही लंबे लंबे अभी वेबिनार होते रहेंगे, बिकॉज आई एम रनिंग 61+। मेरे पास समय कितना है आई डोंट नो। मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं 20-25 साल तो एक्टिव प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा, लेकिन बोल नहीं सकते बुलावा कब आएगा, इसलिए मेरे पास समय कम है और मैक्सिमम काम मुझे करना है। इसलिए हम एक एक वेबिनार में 3-3 पार्ट लेके करते रहेंगे, और we will put all these part different on YouTube। so YouTube पे आपको एक एक पार्ट थोड़ा सा मिलेगा, तो ड्राइविंग करते समय, वॉक करते समय आप एक एक पार्ट प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे। तो इस एंगल से हम उसको YouTube पे डालेंगे, और कोर्स में जब सीरियसली आप कोर्स एंजॉय करेंगे तो कोर्स में भी आपको सब चीजें मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, मैं श्रुति को अनम्यूट करता हूँ। यस श्रुति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन कंक्लूड नाउ। सर हमें रिकॉर्डिंग में डालना था कि हमारे रिमार्क्स जो क्लाइंट के हैं, या यस यस यस, तो बिफोर कंक्लूड हम थोड़ा से क्लाइंट के जो रिमार्क्स हैं वो थोड़े डालते हैं। एसके एसके सिंगल थैंक्स बोल रहे हैं, उनको भी मेरा थैंक्स है। सुनीता, एडवोकेट सुनीता प्रिया, थैंक यू सो मच सर बोल रही है, तो सही में थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। देन शुभ्रा,
थैंक यू सर बोल रही है, थैंक्स सुब्रा। काफी एडवोकेट सुनीता प्रिया बोल रही है काफी कुछ जानने को मिला आज, वेरी गुड। एडवोकेट समीर थैंक्स बोल रहे हैं, एडवोकेट समीर थैंक यू वेरी मच वापस बोल रहे हैं। तो सही में मुझे बहुत एक अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सीरियस है, ज्यादा ऑडियंस नहीं रहता है, लेकिन ये ऑडियंस कम हो ज्यादा हो, बट वी शुड रिकॉर्ड इट, वी शुड पुट इट ऑन यूट्यूब, ऐसा आपने करना चाहिए। एडवोकेट अम्बरीश भी बोल रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, तो थैंक्स अम्बरीश। नाउ श्रुति, यू कैन कंक्लूड। A huge thanks to Advocate Somani for breaking down the PMLA complexities and sharing invaluable insight on tackling black money. Your expertise on Supreme Court stance, PMLA provision, and landmark cases has been truly enlightening. A wing shout out to all participants for joining us and making this webinar a success. Your participation is valuable, truly valuable. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। और आप जब इंट्रोडक्शन अब कंक्लूड कर रही थी, बिफोर दैट किरण कुमार सोनम ने, बॉम्बे से हैं, बॉम्बे के अच्छे लॉयर हैं, ही हैज गिवन द रिमार्क वेरी इनसाइटफुल सेशन, थैंक्स अ मिलियन सर। और उन्होंने अच्छा एक थम्स अप भी दिया है, और एक लव का हार्ट का जो साइन है वो भी दिया है। तो थैंक यू, एंड इन रिसिप्रोकल टू यू ऑल्सो किरण कुमार सोनम ने। और अभी हमारा बॉम्बे ब्रांच शुरू हो रहा है, तो आप जरूर अगर योगदान दे सकते हैं, पैनल पे आना चाहते हैं, बॉम्बे से कोई भी आना चाहते हैं, कंडीशन इज दैट यू शुड हैव अ मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस, ये याद रखना। 4 years से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ही हम हाईकोर्ट के पैनल के ऊपर आपको ले पाएंगे। फिर आपका स्किल देख के लोगों का हम देखेंगे भाई ये ड्राफ्टिंग के लिए सही है, या ये प्लीडिंग के लिए सही है, या दोनों के लिए सही है। ये सब कुछ हम देख के फिर हम फाइनल करेंगे। और सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर का भी हम क्या करेंगे, पैनल तैयार करेंगे हर एक हाईकोर्ट के लिए, ताकि आर्गुमेंट के लिए अगर क्लाइंट चाहता है कि सीनियर डेजिग्नेटेड ही हो, सो वी कैन हायर दैट। और हमारे नेशनल लेवल पे भी सीनियर डेजिग्नेटेड के पैनल रहेंगे, जिसमें हमारे दोस्त कपिल सिब्बल रहेंगे, अभिषेक मनु संघवी रहेंगे, काफी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे, नागामुत्तु हैं, बहुत अच्छे अलग अलग सीनियर एडवोकेट हैं, विकास सिंह है, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम रेगुलर मिलते हैं, कभी कभी लंच साथ में करते हैं। तो इनका सबका हम नेशनल लेवल पे भी पैनल बनाएंगे, ताकि अगर कोई इनका लाभ लेना चाहता है, इनको हायर करना चाहता है, तो हम जरूर उनको उनको उनके रिजनेबल रेट जितना भी हो उतने रिजनेबल रेट पे उनको हायर करके भी उनके लिए दे सकते हैं। तो बस इतना ही मेरा एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इंट्रोड्यूस करना था। और श्रुति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा तरह से प्लायर डिजाइन किया, पूरा अच्छा इसका स्प्रेड किया। लेकिन थोड़े से बिजनेसमैन के ग्रुप के ऊपर, बिजनेसमैन के ग्रुप्स कौन से, बिजनेसमैन के ग्रुप्स जो रहते हैं वो खाली व्हाट्सअप ग्रुप या फेसबुक के ग्रुप पे जो बिजनेसमैन है वो कुछ कुछ आधे से ज्यादा देखते ही नहीं है, वो खाली मेंबर बन जाते हैं, बाद में देखते ही नहीं है। इसलिए इनके एसोसिएशन के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके मोबाइल नंबर अगर निकाल के उनको कांटेक्ट करते हैं, और उनके एसोसिएशन के जो मोबाइल के ग्रुप रहते हैं, जैसा पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का ग्रुप होगा व्हाट्सएप का, उनके सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं, और उनको जब हमारा मैसेज जाता है तब उनके ग्रुप को जाता है ना, तब जाके फिर ऑडियंस को ज्यादा एक मजा आएगा काम करने में। ठीक है, हम ओरिजिनल वेबिनार को उनको नहीं बुला पाए, लेकिन वेबिनार जब यूट्यूब पे जाता है, बाद में जब हम शेयर करते हैं, वो वीडियो भी अगर उनको जाता है ना, वो लोगों को अलग अलग ग्रुप को, तो भी वहां तक वो पहुंचेगा। और वो अगर लाभ लेना चाहते हैं सब सिस्टम का, और गलत तरीके से किधर अटकने की जगह पे, विदाउट इन्वॉल्विंग इन इलीगल मीन्स टू इन एनी इलीगल एक्टिविटी, दे कैन बी अवेयर वेल इन एडवांस, दैट विल बी अ फ्रूटफुल। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच Thank श्रुति, you so एंड much. thank you very much, audience. Thank you. Thank you.